Good evening, dear students. Welcome back to our class. So, I have in the previous classes talked about your DSC paper, okay? Your DSC topics. That is, I have talked about the role of women in the family, in the community, and the state. And then I had taken up the issue of various aspects of women's role in the society, and I had talked about women and sex work. So, various feminist theories centering around the concept of sex work and prostitution that have been already covered by me in my previous lectures. I hope by going through my YouTube videos, you all have more or less understood the concepts which I have been discussing with you, right? So, moving back to our paper on political sociology, today I shall be talking about the concept of political development, right? So, if you look at your syllabus, you will find that there is a particular chapter on political development and social change. So, today we shall be beginning our lecture on the concept of political development. What does that mean? The concept of social change, and here we will be discussing the views of some of the eminent scholars and political thinkers, right? So, let us begin. If you look at the note which I had mailed to you, you will find the concept of political development as the political prerequisite of economic development. So, what does that mean? For every economic development, or rather we should say for every political development, economic development is very necessary. If we go by the Marxist thought, the Marxian philosophy, we shall find that economic development is the prerequisite of any kind of political development. But here the scholars like Paul Barron, Norman S. Buchanan, Howard S. Ellis, Benjamin Higgins, Albert Hirschman, Barbara Ward, and several others, these scientists regard political development as the political prerequisite of economic development. So, let us first concentrate on the concept of development. What does development mean? अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि डेवलपमेंट का मतलब क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा? डेवलपमेंट का मतलब होता है जिस सिचुएशन में आप लोग अभी है वहाँ से जब आप एक बेहतरीन सिचुएशन में एक और भी बेटर कंडीशन में पहुँचेंगे. ओके, सो दैट इज़ डेवलपमेंट. डेवलपमेंट का मतलब है जब आप जिस सिचुएशन में वर्तमान में रहते हैं वहाँ से और भी अच्छा और बेहतरीन कोई जगह पर पहुँचेंगे. और पॉलिटिकल डेवलपमेंट का मतलब है जब आपका पॉलिटिकल सिचुएशन का बेटरमेंट हो रहा है. आप जिस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम में रहते हैं, जिस तरह की गवर्नमेंट द्वारा गवर्न होते हैं, जब उस गवर्नमेंट और उस सिस्टम में कोई बेटरमेंट आएगा तो इसका मतलब है पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ है. और साथ में ये भी बताया जा रहा है कि अगर आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट हासिल करना है, यानी आपका अर्थनैतिक व्यवस्था में अगर सुधार लाना है, तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि आपका पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो. जिस किस्म के पॉलिटिकल सिस्टम में आप रहते हैं, उस पॉलिटिकल सिस्टम में डेवलपमेंट आए तभी आपका इकोनॉमिक सिचुएशन में भी डेवलपमेंट आएगा. ओके, तो देखिए यहाँ पर कुछ स्कॉलर्स का मेंशन किया गया है, जैसे कि
Paul Barron, Norman S. Buchanan, Howard S. Ellis, Benjamin Higgins, Albert Hirschman, बारबरन वर्ड और कुछ अन्य सोशल साइंटिस्ट्स। तो चलिए इनके जो व्यूज़ है पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बारे में उस पर नज़र डालते हैं। Firstly, it is a negative view because in practice we can study better the hindrances which a political system can pose to economic growth than the facilities that it can provide. तो आखिर इन स्कॉलर्स ने क्या कहा था? पहला पैराग्राफ में देखिए, इन स्कॉलर्स ने कहा था कि political development is regarded as that state of the polity which might facilitate economic growth। मतलब ये जो स्कॉलर्स है जिसका नाम अभी मैंने मेंशन किया, तो ये मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स से पूरी तरह डिफरेंट है। इनका ओपिनियन मार्क्स से पूरी तरह डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि मार्क्स ने हमेशा इकोनॉमी को पॉलिटिक्स से पहले सोचा था कि इकोनॉमी फर्स्ट एंड पॉलिटिक्स सेकंड, लेकिन इन स्कॉलर्स ने इकोनॉमी को सेकंड पोजीशन में रखकर पॉलिटिक्स को फर्स्ट पोजीशन में रख रहे हैं। मतलब अगर पॉलिटिकली आप डिवेलप्ड हुए हैं तभी आपको इकोनॉमिकली डिवेलप्ड इकोनॉमिक डिवेलपमेंट आपको हासिल हो सकता है। तो देखिए ये जो व्यू है इसको एक नेगेटिव व्यू माना जा रहा है। क्यों? क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि पॉलिटिकल डिवेलपमेंट इकोनॉमिक डिवेलपमेंट के रास्ते पर कई सारे रुकावट डाल सकते हैं। अगर पॉलिटिकल सिचुएशन, पॉलिटिकल सिस्टम में सुधार आ रहा है, डेवलपमेंट आ रहा है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि इन पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के आने के बाद इकोनॉमी भी आपका डेवलप करेगा। हो सकता है पॉलिटिकल डेवलपमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रास्ते में कई सारे रुकावटें या फिर प्रतिबंधकता भी ला सकता है। Secondly, since economic growths in different societies have been registered under different set of public policies, this approach to political development cannot offer an agreed and acceptable theoretical framework। तो कहा जा रहा है कि डिफरेंट सोसाइटीज़ में इकोनॉमिक ग्रोथ या अर्थनैतिक जो विकास वो हासिल हुआ है डिफरेंट पब्लिक पॉलिसी की वजह से। ओके, तो इंडियन सोसाइटी में जिस तरह की पब्लिक पॉलिसी के कायम होने की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ या अर्थनैतिक विकास हासिल हुआ है, हो सकता है अमेरिकन सोसाइटी में कुछ और ही पब्लिक पॉलिसीज़ अपनाया गया था जिसकी वजह से अमेरिका को आर्थिक विकास हासिल हुआ है। तो जब सोसाइटी अनुसार, पब्लिक पॉलिसी अनुसार इकोनॉमिक ग्रोथ में फ़र्क हो सकता है, तो फिर इकोनॉमिक ग्रोथ और पॉलिटिकल डेवलपमेंट को इस तरह से रिलेट करना सही बात नहीं है। ओके, तो यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि सोसाइटी के डिफरेंट सोसाइटी में डिफरेंट पब्लिक पॉलिसी कायम होने के वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ हासिल होती है। सो देयर इज़ नो यूनिफॉर्मिटी इन पब्लिक पॉलिसी विच कैन अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ, एंड दैट इज़ वाई देयर कैन बी no perfect theory which can claim that political development is the prerequisite of economic development। अमेरिकन सोसाइटी में जिस तरह की पब्लिक पॉलिसी की वजह से आर्थिक विकास हो रहा है, इंडियन सोसाइटी में उस तरह की पब्लिक पॉलिसी ना भी हो सकता है। कुछ दूसरे किस्म के पब्लिक पॉलिसी हो सकता है जिसकी वजह से इंडिया में आर्थिक विकास हो रहा है। तो क्योंकि पब्लिक पॉलिसीज़ में कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है,
सोसाइटी अनुसार पब्लिक पॉलिसी डिफरेंट है और उस अनुसार इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी डिफरेंट प्रोसेस के ज़रिए हो रहा है, तो आप सभी सोसाइटी के लिए ये नहीं कह सकते हैं कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट इज़ द प्री रिक्विजिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ऐसा आप नहीं बोल सकते। Thirdly, in several societies, political development has come at a more rapid pace than the pace of economic growth. फिर देखिए, कहा जा रहा है कि बहुत सी ऐसे सोसाइटीज़ है जिन सोसाइटीज़ में पॉलिटिकल डेवलपमेंट बहुत ही जल्दी आ गया है, लेकिन उस हिसाब से आर्थिक विकास नहीं आया है। तो अगर पॉलिटिकल डेवलपमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट का प्री रिक्विजिट होता, अगर पॉलिटिकल डेवलपमेंट वो शर्त होता जिसके पूरे होने पर ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट आता, तो कभी ऐसा नहीं होता कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट जल्दी हो गया है लेकिन उस हिसाब से इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुआ है। ऐसा नहीं होता। एंड फाइनली, in most underdeveloped countries, people clearly are concerned with far more than just material development. They are anxious about political development, quite independent of the effect on the rate of economic growth. Thus, it is not a fully acceptable view of political development. तो अंडर डेवलप्ड देश जैसे एशिया या फिर अफ्रीका के देशों में क्या होता है, लोगों को बहुत ज़्यादा पड़ी है उनके मटेरियल डेवलपमेंट के लिए। मतलब पीपल आर कंसर्न विथ फार मोर दैन जस्ट मटेरियल डेवलपमेंट। तो अंडर डेवलप्ड देशों की लोगों को अपनी मटेरियल डेवलपमेंट या आर्थिक विकास से भी ज़्यादा ज़रूरी लगता है उनके पॉलिटिकल डेवलपमेंट। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर अंडर डेवलप्ड देशों में जो प्रॉब्लम चलता है वो है पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, जैसे गवर्नमेंट लेवल में करप्शन, भ्रष्टाचार। कोई भी फाइल अगर गवर्नमेंट ऑफिस में जमा किया जाता है तो उसको खोलने के लिए पैसा या रिश्वत देनी पड़ती है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को। कोई भी डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट अगर शुरू हो रहा है तो वो वक्त पर ख़त्म नहीं हो पाता है। तो ये सब चलता है क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम जो है उसमें कोई विकास या डेवलपमेंट नहीं है। तो आप देखिएगा कि ज़्यादातर अंडर डेवलप्ड देशों को अपने मटेरियल या फिर आर्थिक विकास से ज़्यादा ज़रूरी लगता है उनका पॉलिटिकल डेवलपमेंट, और उनको ये लगता है कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ ये दोनों असल में एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, इनका आपस में कोई ज़्यादा गहरा रिश्ता नहीं है। इस सेंटेंस को अगर आप पढ़िएगा तो देखिए, they are anxious, they मतलब underdeveloped states are anxious about political development quite independent of the effect on the rate of economic growth। मतलब political development economic development से काफ़ी independent या स्वतंत्र होता है, इन दोनों का आपस में कोई गहरा रिश्ता नहीं होता है। तो चलिए कुछ और थियोरीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं। तो पहला ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स जिनके पॉलिटिकल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट के बारे में आपने अभी पढ़ा, वो कॉन्सेप्ट सही नहीं है। वो कॉन्सेप्ट क्या था कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट वो शर्त है जिसके पूरे होने पर ही एक सोसाइटी के लोगों को आर्थिक या इकोनॉमिक डेवलपमेंट हासिल होगा। लेकिन ये जो डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है वो सही नहीं है। इसका कारण भी अभी आपने पढ़ा कि डिफरेंट सोसाइटी में पब्लिक पॉलिसी डिफरेंट होने की वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी डिफरेंट तरीके से होता है।
तो ऐसा कोई यूनिफॉर्म या यूनिवर्सल रूल नहीं है कि दिस पब्लिक पॉलिसी विल लीड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो क्योंकि यूनिवर्सलिटी की कमी है तो इस वजह से ये थ्योरी कामयाब नहीं होता है। फिर दूसरी बात हम लोगों ने देखा कि अंडर डेवलप्ड देशों को लगता है कि उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है पॉलिटिकल डेवलपमेंट, उनके सिस्टम के अंदर जो कमियां हैं, जो प्रॉब्लम्स है, उनको मिटाना ज़्यादा ज़रूरी है और उनको लगता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पॉलिटिकल डेवलपमेंट ये एक दूसरे से पूरी तरह स्वतंत्र है। तो कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट का शर्त पूरे होने पर ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट हासिल होगा। ये सही बात नहीं है। और ये भी सच बात है कि अक्सर देखा जाता है बहुत सी ऐसी सोसाइटीज़ है जहाँ पर पॉलिटिकल डेवलपमेंट बहुत जल्दी जल्दी हासिल हो जाता है, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट उस हिसाब से हासिल नहीं होता है। तो इसलिए पहले जो थ्योरी फर्स्ट ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स ने जो थ्योरी आप लोगों को दिया वो सही नहीं है। तो चलिए दूसरा मॉडल या दूसरा पॉलिटिकल डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है उस पर ध्यान देते हैं। देखिए सेकंड कॉन्सेप्ट जो है पॉलिटिकल डेवलपमेंट एज द पॉलिटिक्स टिपिकल ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़। तो कहा जाता है कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट यानी पॉलिटिकल सिस्टम या गवर्नेंस में डेवलपमेंट जो है वो इंडस्ट्रियल सोसाइटी की ही खासियत होती है। मतलब जो सोसाइटीज़ बहुत एडवांस्ड है, इंडस्ट्रियलाइज्ड है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सोसाइटी, यूरोपियन देशों के सोसाइटी जो इंडस्ट्रियली काफ़ी एडवांस्ड है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी वहाँ पर ही हासिल हो सकता है। This view of development is based on the assumption का क्या मतलब है? ये सोच, ये विश्वास। तो ये जो डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है ये कौन से विश्वास पर आधारित है? ये विश्वास कि इंडस्ट्रियल लाइफ प्रोड्यूसेस अ मोर और लेस common and generic type of political life which any society can seek to approximate whether it is in fact industrialized or not। तो कहा जाता है कि जो सोसाइटीज़ इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटी है, इंडस्ट्री जहाँ पर बहुत एडवांस्ड है, तो सिर्फ वही सोसाइटी अपने पॉलिटिकल सिस्टम को डेवलप करने के बारे में सोच सकता है। Industrial societies set certain standards of political behavior and performance that constitute the state of political development, as social scientists like Walt W. Rostow opine, and represent the appropriate goals of development for all other systems। तो इंडस्ट्रियलाइज्ड या इंडस्ट्रियली एडवांस्ड सोसाइटी के अपने कुछ स्टैंडर्ड्स है जिस अनुसार वहाँ के पॉलिटिकल बिहेवियर और पॉलिटिकल परफॉर्मेंस के बारे में कुछ थ्योरी बनाया जा सकता है। तो मैं आप लोगों को अगर यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दे दूँ तो आप लोगों को समझने में आसानी होगा। तो देखिए इंडस्ट्रियली एडवांस्ड सोसाइटी का एग्जाम्पल हो सकता है द सोसाइटी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो अमेरिका में पॉलिटिकल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? वहाँ पॉलिटिकल डेवलपमेंट का मतलब है वहाँ का जो लिबरल डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो लिबरल डेमोक्रेसी और भी ज़्यादा फेयर एंड फ्री और सबके लिए इक्वल राइट्स प्रोपागेट करेगा। ओके तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिकन सोसाइटी का अपना कुछ स्टैंडर्ड्स है, जैसे वहाँ के पॉलिटिकल डेवलपमेंट का मतलब होगा कि लिबरल डेमोक्रेसी,
सभी जनता के जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, जो बेसिक चाहते हैं, बेसिक ज़रूरतें हैं, उन सब ज़रूरतों को पूरा करेगा और उन सब चाहतों को पूरा करने के बाद सभी नागरिकों में इक्वल राइट्स और फ्री एंड फेयर ट्रीटमेंट बरकरार रखेगा। तो ऐसे ही इंडस्ट्रियल सोसाइटी के अपने कुछ प्रिंसिपल्स या स्टैंडर्ड्स होते हैं जिस अनुसार वो अपने पॉलिटिकल सिस्टम को डेवलप करने की कोशिश करता है। This view as such holds that political development involves certain patterns of presumably rational and responsible government behavior। तो इन दोनों शब्दों पर अमल कीजिए, रैशनल एंड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंटल बिहेवियर। तो डेवलप्ड देश जैसे अमेरिका या यूरोप के देश वो पॉलिटिकल डेवलपमेंट का मतलब क्या समझते हैं? पॉलिटिकल डेवलपमेंट का मतलब है जहाँ पर गवर्नमेंट हमेशा रैशनल डिसीजन लेगा। तो व्हाट इज़ मेंट बाय रैशनल डिसीजन? रैशनल डिसीजन मीन्स ऐसा फैसला जिससे हर किसी को फ़ायदा होगा, सभी नागरिकों का अच्छा होगा, भलाई होगा। और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंटल बिहेवियर मतलब गवर्नमेंट हमेशा अपने सभी कामकाजों के लिए आम जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार रहेगा। ओके, तो वेस्टर्न और एडवांस्ड देशों में, इंडस्ट्रियली डेवलप्ड सोसाइटीज़ में पॉलिटिकल डेवलपमेंट का मतलब है गवर्नमेंट को और भी रैशनल होना पड़ेगा, सबके लिए फ्री एंड फेयर ट्रीटमेंट ज़रूरी है और गवर्नमेंट को अपने सभी कामकाजों के लिए आम नागरिकों के प्रति रिस्पॉन्सिबल रहना पड़ेगा। An avoidance of reckless action, some sense of limitations on politics, appreciation of the values of orderly administrative and legal procedures, and acknowledgement that politics is rightly a mechanism for solving problems and not an end in itself, a stress on social welfare programs, and finally an acceptance of some form of mass participation। तो देखिए कितने सारे कॉन्सेप्ट्स एक साथ मिलकर पॉलिटिकल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट बना रहा है। क्या क्या कॉन्सेप्ट देखिए? गवर्नमेंट इज़ नॉट एन एंड इन इटसेल्फ, मतलब पॉलिटिक्स को आप एक एंड या एक मकसद की तरह ना सोचिए। ये एक उपाय है, एक मीन्स है जिसको इस्तेमाल करके आप कोई अच्छा मकसद या ऑब्जेक्टिव हासिल करना चाहेंगे। तो वो सब अच्छा ऑब्जेक्टिव्स क्या है जो पॉलिटिक्स हासिल करना चाहेगा? अ स्ट्रेस ऑन वेलफेयर प्रोग्राम्स, मतलब पॉलिटिक्स ज़्यादा से ज़्यादा महत्व देगा, ज़्यादा से ज़्यादा अहमियत देगा वेलफेयर प्रोग्राम्स के ऊपर। वेलफेयर प्रोग्राम मीन्स आम जनता के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा ऐसा कुछ प्रोग्राम्स, जैसे आम जनता के लिए हेल्थ या हेल्थ रिलेटेड सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट, आम जनता के, गरीब जनता के बच्चों के लिए एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर कोई डिसेबल्ड है, फिज़िकली हैंडीकैप्ड है तो उनका देखभाल के लिए राष्ट्र उन्हें आर्थिक मदद करेगा। तो ये है वेलफेयर प्रोग्राम्स जो कि एक गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा अपने नागरिकों के लिए सुरक्षित करेगा। और सम फॉर्म ऑफ मास पार्टिसिपेशन, यानी नागरिकों को भी गवर्नमेंट के फंक्शन में पार्टिसिपेट करने का, हिस्सा लेने का मौका मिलना चाहिए। तो देखिए इंडस्ट्रियली एडवांस्ड सोसाइटीज़ के लिए डेवलपमेंट का मतलब है ये सब कुछ। गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबली काम करेगा, आम जनता के लिए वेलफेयर एक्टिविटीज़ करेगा,
आम जनता को गवर्नमेंट में हिस्सा लेने के लिए और भी इन्फ्लुएंस करेगा, उत्साह देगा। और सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट सबके लिए फ्री एंड फेयर ट्रीटमेंट का बंदोबस्त करेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ रीच और रईस लोगों को ही सारे सुविधाएं मिलेगा और गरीब लोगों को कोई भी फैसिलिटी मिलेगा। ऐसे पॉलिटिकल डेवलपमेंट हासिल नहीं हो सकता है। उसके बाद देखिए एक थर्ड कॉन्सेप्ट है पॉलिटिकल डेवलपमेंट का, जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट को समझता है एक किस्म का पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन। ओके, जहाँ पर राष्ट्र व्यवस्था को और भी मॉडर्नाइज्ड होना पड़ेगा। जिस किस्म की राष्ट्र व्यवस्था पहले था उससे और भी ज़्यादा डेवलप्ड और मॉडर्न एक स्टेट सिस्टम की ज़रूरत है। तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट का मतलब है पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन। तो कुछ सोशल साइंटिस्ट्स जैसे जेम्स कोलमैन, कार्ल डॉयच, एस.एम. लिपसेट और ऐसे कुछ लोगों ने पॉलिटिकल डेवलपमेंट को पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन के नज़रिया से देखा था। और मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है कि डेवलपमेंट मतलब मॉडर्नाइजेशन, ये भी एक तरह का एडवांस्ड और इंडस्ट्रियली डेवलप्ड सोसाइटी का ही डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है।